Okay, so in our previous video, I already told you about the energy transfer. Okay, so for give a more better explanation, I'm just giving one example. Okay, just listen. The first thing is, suppose we took the example of a food chain like grass, mice, snakes, and peacocks. Okay, अब देखो मैंने क्या लिया, ग्रास लिया, माइस लिया और स्नेक और पीकॉक। अगर मैं देखूं तो इसमें कितने ट्रॉपिक लेवल हुए बेटा? 4। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इफ़ इन दिस चेन 100 जूल ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, then calculate the energy transfer to the peacock as food. Okay, so how can you calculate it? See, for that what you have to do, for this, as you know that from one tropic level to another tropic level only 10% energy will get transferred. Okay, so क्या होगा देखो, मान लो ग्रास के पास, क्योंकि हमें बताया गया है क्वेश्चन में कि if in this chain 100 joule of energy is available to the producer level, है ना, so the 100 joule energy is given in the question, है ना। तो हमारा जो ग्रास है, ग्रास का यानी प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी एनर्जी हो गई? 100 जूल। ठीक, अब इसमें से हमारा जो सेकेंडरी वन है ना, या हम इसको कहें सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है, इस सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे हमारे पास है माइस। तो माइस के पास 100 जूल का 10% जाएगा तो कितना होगा? 10 जूल। वेरी गुड। अब माइस से आप पहुंचो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे। थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे मेरे पास है स्नेक। ठीक है, अब इस 10 जूल का 10% स्नेक को ट्रांसफ़र होगा तो कितना जाएगा? 1 जूल। वेरी करेक्ट। अब स्नेक से मैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे स्विच करूँगी तो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे है मेरे पास पीकॉक। ठीक है, तो पीकॉक पे कितना एनर्जी जाएगा? 1 जूल का 10% करो, सोचो। वेरी गुड, 0.1 joule. So in this way the 10% energy will get transferred to each and every level. So as you are seeing that what the amount of energy which get by the top or we can say हाँ the top corner ले लो आप, ऐसा समझ लो कि जो टॉप में जो होगा है ना, उसके पास एनर्जी कितनी गई बेटा? सबसे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है उसको, है ना। अब इस कंसेप्ट के साथ एक और क्वेश्चन रेज होता है हियर, दैट द व्हाई द नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स इन अ फूड चेन इज लिमिटेड। ओके, जस्ट लिसन। एट ईच ट्रॉपिक लेवल in a food chain, a large portion of the energy is utilized for the maintenance of organisms which occur at that tropic level and lost as heat. As a result of this, organisms in each tropic level pass on less and less energy to the next tropic levels than they receive. So, the longer the food chain, the less is the energy available to the final member of the food chain. So, the food chain generally consists of 3 or 4 steps, because after that the energy available for the next organism will be so small that it will be insufficient to sustain the life of that organism. Okay, अभी देखा ना आपने, मैंने 4 लेवल बनाए थे, है ना। तो ग्रास को, जब ग्रास को 100 जूल मिल रहा था तो आपका जो सबसे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे जो भी ऑर्गेनिज्म था उसको सिर्फ 0.1 जूल मिली। तो कितना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है ना। इसीलिए बोला जा रहा है, सो देयर आर हाउएवर सम फूड चेन्स कंटेनिंग द 5 स्टेप्स, बट देयर आर रेयरली मोर देन 5 स्टेप्स इन द फूड चेन। ठीक है, चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। वेरी गुड। बायो का मतलब होता है बेटा लिविंग, मैग्नीफाइड यानी बढ़ना। ठीक है, अब क्या बढ़ना? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अडल्ट्रेंट का
बढ़ना या किसी केमिकल सब्सटेंस का किसी फूड चेन में ऐड होना बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहलाता है। देखो थोड़ा सा डिटेल करते हैं ना। हार्मफुल केमिकल्स लाइक insecticides and pesticides which are used to protect crops from insects and pests are absorbed by plants and enter the food chain. Since these chemicals are non-biodegradable, they get accumulated at every trophic level and their concentration increases. Since human beings occupy the highest trophic level, the concentration of these harmful chemicals is maximum in our bodies. So the increase in concentration of harmful chemicals in the bodies of the organism at higher trophic level is called biological magnification, है ना। अब देखो इस स्लाइड को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ आपको समझाने के लिए। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, बायो मैग्निफिकेशन थ्रू फूड चेन। ये प्लांट्स हैं, इनके ऊपर हमने इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करा, ठीक है। इनके ऊपर फीड अप करेंगे कौन, देखो ये प्लांट थे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे कौन है, हार्बीवोर है। प्लांट से ट्रांसफ़र होगा हार्बीवोर को कौन, ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड या समझ लो केमिकल, ठीक है। इसके बाद केमिकल कहाँ पे जाएगा, इस लेवल पे चला गया, है ना। ये हो गए हमारे कौन सा, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल था, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ, ठीक है। अब थर्ड से फिर किसको ट्रांसफ़र होगा, फोर्थ को ट्रांसफ़र होगा। समझना ध्यान से, क्योंकि ये केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं, इसीलिए ये सब्सटेंस जब एक से दूसरे कंज्यूमर को ट्रांसफ़र होते हैं तो लगातार उनका कंसंट्रेशन बढ़ता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो सबसे टॉप मोस्ट होगा, यानी ये जो फोर्थ वाला है ना, ये सबसे ज़्यादा कंटामिनेट होगा, ठीक है। और दूसरी फूड चेन देखें, ये क्या दिया, एक्यूमुलेशन ऑफ मर्करी इन द फूड चेन, है ना, देख सकते हैं आप इसको। फिर एक ये बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, देखो क्या दिया है, पानी में डीडीटी का अमाउंट बहुत कम है, देखो 0.00003 है ना डीडीटी, पानी में कितना डीडीटी है। फिर पानी से ये डीडीटी किसके पास गया, जू प्लैंक्टन्स किसको बोलते हैं, जो माइक्रोबियल बॉडीज़ होती है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना बेटा, उनको बोलते हैं, है ना, जू प्लैंक्टन्स। अब इस जू प्लैंक्टन्स के पास कितना गया, देखो 0.04 ppm, है ना। इसके बाद इसके ऊपर फीडअप करा, किसने करा, स्मॉल फिशेस ने खाया जू प्लैंक्टन्स को, तो उनमें ये कंसंट्रेशन बढ़कर हो गया 0.5, ठीक है। अब इस 0.5 वाले कंसंट्रेशन वाली स्मॉल फिश को किसने कंज्यूम करा, लार्ज फिश ने, देख रहे हो ना, ये लार्ज फिश है। देखो कहाँ से शुरुआत करी थी हमने, यहाँ से ये, फिर हम ये लेवल पे गए, फिर इस लेवल पे आए, फिर अब इस लेवल पे। अब ये फिश ने खा लिया किसको, स्मॉल फिशेस को। अब क्या होगा, देखो इसमें कंसंट्रेशन हो गया 2 ppm। उसके बाद जब ईगल ने इस लार्ज फिश को खाया तो ईगल की बॉडी में डीडीटी का कंसंट्रेशन है 25 ppm। देखो पानी में उसका कंसंट्रेशन कितना कम था, 0.00003, है ना। और जब वो ईगल में पहुंच गया तो वो कितना हो गया, 25 ppm, यानी कंसंट्रेशन लेवल कितना था, 10 मिलियंस टाइम। समझ में आ रहा है, इसीलिए टर्म दिया गया इसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। हमने बोला ना मैग्नीफाइंग होना या मैग्नीफाई होना, यानी क्या होना, बढ़ना। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडल्ट्रेंट का, केमिकल्स का फूड चेन में ऐड होना क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओके।